Hello, welcome back to my accountancy class, the Master's World. Today's topic is the solution of a partnership form, class 12. In this question number 22, we are going to learn the further concept of preparing the ledger accounts. What have been asked, I'll tell you. But for the reference, question number 22, T.S. Grewal, edition 2020 to 21, means latest edition. In very short, I have written the question. I am going to make the question clear first. In this question, there are two partners, Bale and Yale. Ratio 1:1. Balance sheet. In the liability side, capital, Bale 50,000, Yale 40,000, total 90,000 capital. Journal reserve 8,000, loan by Bale 3,000, creditors 14,000. After that, some assets you have been given. Building 45,000, machinery 15,000, furniture 12,000, debtors 8,000, stock 24,000, and the bank balance you have been given 11,000. After this balance sheet, you have been given some adjustments. But now we are going to solve the question according to steps. The first step to solve this question is read the last line what you have been asked to prepare and draw the format. First, realization account. You have drawn the format of realization account. Second, capital accounts. You have drawn the format of capital account. Particulars, amount. Here, amount for Bale. Second column, amount for Yale. In combined column, combined format, we can say, we have prepared the account. We are going to prepare the account of Bale and Yale. Debit side, credit side. Amount of Bale, amount of Yale. Next, Bale's account and bank account. Now we are not having the space on this board. That's why I have not drawn the format of Bale's account and Yale's bank account. I'll draw the format after 2 minutes when I start the solution. First step, read the last line. See what you have been asked to prepare. Draw the format. Second step, solve the question of the balance sheet. Or we can say, start to close the accounts of assets and liability. Hope you have watched my last videos in which I have discussed the concept that what is it. Now we are going to close the accounts. Assets are having the debit balances always. When we close the accounts of asset, we credit them. We credit building, credit machine, credit furniture, credit debtor, credit stock. तो एक कौन सा अकाउंट फिर डेबिट करेंगे? जब आप इन सभी अकाउंट्स को, असेट्स के अकाउंट जो डेबिट होते हैं, क्लोज कर रहे हो क्रेडिट करके, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे कि जर्नल एंट्री बनेगी? तो जर्नल एंट्री बनेगी, लास्ट क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और असेट्स को क्रेडिट करके क्लोज किया टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट, टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट. In short, I am writing here now to furniture, to debtor, to stock account. आपने सभी असेट्स अकाउंट जो कि रियलाइज हो सकते हैं उनके अकाउंट्स को क्लोज कर डाला। अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए असेट्स को क्रेडिट किया, तो टेम्परेरी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट खोला जिसको डेबिट किया, एंड जर्नल एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। और वहां से आपने अमाउंट लिख दी 45,000, 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर 8,000,
और स्टॉक 24,000। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है, हमें इसकी सारी बैलेंस शीट ही पहले सोल्व करनी होती है। सेकंड स्टेप हमारा यही होता है। हमने बिल्डिंग अकाउंट क्लोज कर दिया, मशीन अकाउंट क्लोज कर दिया, फर्नीचर, डाटा, स्टॉक, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। केवल एक अकाउंट खुला हुआ रह गया, कौन सा? बैंक अकाउंट। असेट में कुछ नहीं बचा, केवल बैंक बैलेंस बचा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में बैलेंस आपको दिया हुआ है बेल और येल का। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और ये कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, तो इसके क्रेडिट साइड में आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाए। आप ब्रॉट डाउन भी ले सकते हैं। बेल का 50,000 बेल के कॉलम में और येल का 40,000 येल के कॉलम में। आपने अमाउंट इनका लिख डाला। इस तरीके से आपका अब यहां पर बैलेंस शीट में ये भी फिलहाल नहीं है। अब बचता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशंस होता है, प्रॉफिट का एक बंटवारा होता है, मतलब उसमें से उठा के रखते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके। डिसोल्यूशन के टाइम पर ये पुरानी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स जो भी हैं, पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में मींस जो भी पार्टनर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इनकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल जब आप बढ़ाएंगे बाय जनरल रिजर्व के नाम से, 8,000 है, रेशियो था इनका 1:1, तो 4,000 बेल को, 4,000 येल को। जर्नल एंट्री जरा चेक करें। जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इसको क्लोज करोगे तो डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्लोज। कैपिटल्स बढ़ा देंगे टू कैपिटल अकाउंट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेल्स कैपिटल अकाउंट टू येल्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री। अब यहां जनरल रिजर्व नहीं रहा। अब बात आती है आपकी बेल के लोन अकाउंट की। लोन बाय बेल, तो आपसे लोन अकाउंट पूछा है, इसका फॉर्मेट अभी ड्रॉ करते हैं बिल्कुल हम। एक एंट्री और देखते हैं। अभी ये बचा है क्रेडिटर्स। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रियलाइजेबल लायबिलिटीज अकाउंट जब क्लोज किए जाते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, रिलेशन क्रेडिट हो गया, तो रिलेशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से अमाउंट है 14,000। अब आपका ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, जितने भी अकाउंट्स थे सारे क्लोज हो चुके हैं, केवल कौन से ओपन है? रिलेशन 1, कैपिटल अकाउंट 2, बैंक बैलेंस है 3, बिल का लोन अकाउंट है 4, ओनली 4। तो ठीक है, अब हम जब बैलेंस शीट यहां से हट ही चुकी है तो बैंक अकाउंट फिलहाल खोल देते हैं हम, और यहां पर हम बिल का अकाउंट के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां सोल्यूशन का एक पार्ट होगा, अकाउंट ड्रॉ करते हैं बेल्स लोन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ये लायबिलिटी थी तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में पहुंच गया, यहां से हटा दें 3,000 लिख दें बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। देखिए बैंक रह गया है, अब आप यहां से बैंक भी हटा दें, बैंक का अकाउंट खोल दें, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। 11,000 का बैलेंस था बैंक का, और इस तरीके से आपकी पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है। कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रह गया। वर्ड्स पर बार बार बेटा ध्यान दें, कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रह गया, सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं एक्सेप्ट 4। एक तो बैंक अकाउंट जिसमें आप फिलहाल कॉलम बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक तो बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है, कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, बिल्स का लोन अकाउंट खुला हुआ है, केवल 4 अकाउंट्स खुले हुए हैं। अब कोई भी एडजस्टमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो कोई जर्नल एंट्री या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन 4 अकाउंट्स के बेस पर ही होगा और कुछ नहीं। ना तो आपको गलती से एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना, ना रिवेन्यू, ना इनकम, ना लॉस, ना प्रॉफिट, कोई अकाउंट, असेट अकाउंट, कुछ नहीं। केवल इन 4 अकाउंट्स के बेस पर ही आपकी सारी जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट अब आती है। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड स्टेप पर। I repeat again, first step, read the last line and draw the format. Second step, balance sheet of the question, वो हमने पूरी अब सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। थर्ड स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, assets realized, stock 22,000, मशीनरी 16,000 एंड बिल्डिंग 35,000। जब आप ये सारी असेट्स रियलाइज करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बढ़ता है तो जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही बिल के लोन पर, तो क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन, असेट्स रियलाइज्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड लिख दें टू रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनका टोटल कर दें 22 प्लस 16,000, ये आपका आ गया 38,000, 73,000 टोटल आपने अमाउंट रिसीव कर लिया। आप नरेशन में यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बीइंग असेट्स रियलाइज्ड या स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग रियलाइज, ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जर्नल एंट्री के हिसाब से बताया है। बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मींस रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर आप नरेश ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग और इनके अमाउंट भी लिख सकते हैं चाहे तो 73,000। अब इस तरीके से आप ध्यान से देखना बेटा, जब हमने अकाउंट्स करे तो कॉन्सेप्ट के बेस पर सारे अकाउंट्स असेट्स के यहां लिखे, असेट्स लिखी तो यहां नहीं, लेकिन रियलाइज राइट हैंड साइड की जा रही है और ये बैंक के नाम से है, बैंक बाय बैंक अकाउंट। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। या तो असेट्स बैंक के नाम से रियलाइज होंगी, वरना कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसकी कैपिटल के नाम से, पार्टनर की कैपिटल घटा देते हैं। तो ये आपकी एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पूरी हो चुकी है कि आपने स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग रियलाइज कर ली। अब नेक्स्ट देखें जरा, पार्टनर येल है आपका टूक ओवर द फर्नीचर। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पार्टनर ने बच्चे को आंसर बताते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है, तो बच्चा सोचता है अच्छा पार्टनर ने इसकी असेट ले ली, यानी असेट ले ली तो कैपिटल बढ़ गई। आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना पर्सनल, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप और मैं पार्टनर हैं और मैं कह रहा हूं कि ये जो फर्म के अंदर असेट है ये मुझे दे दो, तो आप ये मत समझो सर का बढ़ गया। आप कहेंगे सर आप फर्म की असेट ले जा रहे हैं तो हम फर्म में से आपकी कैपिटल घटा देंगे, देखो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पार्टनर असेट ले जा रहा है तो हमारा रिलेटिव नहीं है, वो उसके घर पर असेट बढ़ेगी, लेकिन फर्म में से उसकी कैपिटल घटा देंगे, घटाने के बाद पेमेंट करेंगे। अब उसको हम बचा हुआ, यदि ये को 1 लाख रुपीस का पेमेंट करना है और वो कह रहा है मैं तो 9,000 का फर्नीचर ले जा रहा हूं, तो ले जा, 1 लाख में से 9,000 का माइनस कर देंगे, 91 बैलेंस पे करेंगे तुझे, तो कैपिटल कम कर दी जाती है। तो जर्नल एंट्री बनेगी येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना तो बैंक पर फर्क पड़ा, ना लोन पर, ना किस पर, रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो येल की कैपिटल को डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। आप ब्रैकेट में ले सकते हैं जो इसने असेट ली है उसका फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर, बेल के सामने डॉट लगाएं, 9,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बनी, येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया येल्स कैपिटल के नाम से।
ब्रैकेट में आप फर्नीचर लिख सकते हैं 9,000। जो पार्टनर असेट ले जाता है उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट मींस माइनस कर देते हैं कम, और यहां पर दिखा देते हैं एंट्री बनती है कैपिटल डेबिट टू रिलेशन मींस रिलेशन क्रिएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी, बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेल का लोन था फर्म को, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे 25 रुपीज फर्म पे कर दे, मेरा हिसाब बराबर है। तो फाइनली उसका अकाउंट क्लोज करना है, फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है और उसके लोन अकाउंट क्लोज। तो फर्म की आप पहले लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, फर्म की लायबिलिटी क्लोज हो रही है तो एंट्री बनाओगे बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 2500 रुपीज से, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट में ले गया, तो फर्म का फायदा भी होगा 500 रुपीज का। तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म का बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट, क्योंकि फर्म का फायदा है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। और इस तरीके से आपने बेल्स का लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। बेल्स लोन अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्लोज टू बैंक, फर्म का बैंक बैलेंस कम, फर्म का फायदा टू रिलेशन। इसके बेस पर आगे वहां भी ट्रीटमेंट कर लें। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस क्रेडिट हो रहा है बैंक बाय बेल्स लोन अकाउंट 2500, साथ के साथ रिलेशन क्रेडिट हो रहा है तो रिलेशन के क्रेडिट में बाय बेल्स लोन अकाउंट 500। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी जर्नल एंट्रीज के हिसाब से। कई बार 1 मार्क में 2 मार्क में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कुछ जर्नल एंट्रीज में, तो लोन से रिलेटेड एंट्रीज आने के चांस रहते हैं। तो अब आपका इसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है। लास्ट रह गई आपकी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बैंक बैलेंस कम होगा बच्चों, तो बैंक को तो क्रेडिट करना ही है, पेमेंट होगा। बैंक कम हो गया, ठीक है, ना तो कैपिटल पर फर्क पड़ा ना लोन पर, ये तो क्लोज ही है। आपका बचता है रिलेशन, तो इन्हीं आपस में एडजस्टमेंट करके बनानी है जर्नल एंट्री। बैंक बैलेंस कम हुआ तो बैंक को क्रेडिट, रिलेशन में खर्चा है तो डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है आपका 25,000। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 25,000। लेट मी चेक बेटा, मैं इसको चेक कर लेता हूं जरा, 25 है या 24 है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा सा लग रहा है इसका। ये 0 एक्स्ट्रा है, 2500 का पेमेंट है। जैसे ही आपने पेमेंट किया तो जर्नल एंट्री बनी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ऐसे ही बैंक बैलेंस कम कर देना आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दें डिस्क्लोज करने के लिए कि 2500 का पेमेंट हुआ। ऐसे ही यहां लिख दें रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब आपकी सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप आई रिपीट अगेन, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फॉर्मेट। सेकंड, बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन, क्लोज ऑल अकाउंट्स। थर्ड, रीड द एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड सोल्व देम। जहां जहां एक एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन है सब जगह एक साथ कर दो, अलग अलग अकाउंट बार बार बनाने की जरूरत नहीं। फोर्थ, क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टार्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोजिंग स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज देखनी है, बैलेंस शीट में कुछ असेट्स थी, उनको रियलाइज करने से रिलेटेड एडजस्टमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्वेश्चन की कुछ लायबिलिटीज थी, उससे रियलाइज करने से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अब आप क्या करते हैं, जब सारा काम हो गया, आप क्वेश्चन में ये देखते हो कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं।
यदि ऐसी लायबिलिटी है तो उसका बुक वैल्यू पर पेमेंट कर देते हैं, और यदि एसेट है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए गए थे और उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो अब आप इन क्रेडिटर्स का फुल वैल्यू पर पेमेंट करेंगे और बैंक बैलेंस को कम करेंगे। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बुक वैल्यू पर लायबिलिटी का पेमेंट क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं दी, ब्रैकेट में लिख दे क्रेडिटर्स और बैंक बैलेंस साथ के साथ कम कर दें बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिटर्स, अमाउंट 14,000 जो बुक वैल्यू है। अब आपकी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। अब आप यहां से इसको सोल्व करना शुरू करें। आप इसका डेबिट साइड का टोटल करें और क्रेडिट साइड का टोटल करें। इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और वो ज्यादा वाला टोटल ही आपको यहां लिखना है। टोटल आप खुद से करेंगे, ठीक है। डेबिट का ज्यादा है इसलिए लॉस हुआ है और आप लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कम हो जाएंगी तो एंट्री बनती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और ये टोटल है 16,500 का लॉस। बेल और येल को इनके पीएसआर में 8,250 तो लॉस से कैपिटल कम, तो येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दें लॉस ऑन रियलाइजेशन या केवल लॉस लिख दें सफिशिएंट रहेगा। 8,250 ठीक है। अब इस तरीके से आपका बेल्स अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो चुका था, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, 2 अकाउंट्स ओपन रह गए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब हम इनका भी पेमेंट कर डालते हैं। ध्यान रखें बच्चों, डिसोल्यूशन है, एंड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस एंड हो रहा है, कोई अकाउंट ओपन नहीं रहेगा, इसलिए किसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इस साइड का टोटल करा आपने 54,000, इसका टोटल किया 44,000, सेम टोटल आपका यहां गया 54,000, 44,000 टू बैंक अकाउंट के नाम से पेमेंट कर दिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मींस क्रेडिट माइनस डेबिट। जब आपने इसका टोटल किया तो इसका पेमेंट तो बनता है 45,750, ठीक है, और ये का पेमेंट बनता है, इसका भी सेम है 45,700। इसका चेक कर लेते एक बार, 54 माइनस 8 तो रह गया 46, 46 माइनस 250, इसका सही आ गया। अब इसका पेमेंट का चेक कर लेते हैं। इसका आपने माइनस किया तो ये आ गया 35, 44 माइनस 8 तो 36 आया, 36 में से माइनस किया तो 26,750, 26,750 का पेमेंट आ गया। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, 9 और 26 35 और 8 43 44, ठीक है। अब ध्यान से सुने, आपने इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना करके बैंक से पेमेंट किया है, इस तरीके से बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। किसके नाम से? बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट बाय येल्स कैपिटल अकाउंट। बेल 45,750 और ये
26,750। देखिए आपका बैंक का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, आपको पता है कि सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं यहां तक, तो ये भी क्लोज होना है एंड है। लेकिन जैसे बैलेंस शीट में अब तक टोटल इक्वल आता था, यदि इक्वल आ गया तो सारा सही होता था, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती थी। इसी तरीके से इसका टोटल भी इक्वल आएगा, यदि नहीं आया है तो मिस्टेक्स हैं। आप बैंक का दोनों साइड का टोटल करें, इसका आया है 84,000, ठीक है, और आप इसका भी टोटल करेंगे तो इसका भी आपका 84,000 ही आएगा। तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस। There may be any doubt. If there is any doubt, you can leave a WhatsApp message or you can leave a comment so that I can make the further video according to your queries, to sort out your queries, etc. Thank you. Have a nice day.